శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. బ్రహ్మాండ రూప గోవింద, భక్త రక్షక గోవింద, నిత్య కళ్యాణ గోవింద, నీరజనాభ గోవింద, అతిరామ ప్రియ గోవింద, హరి సర్వోత్తమ గోవింద, జనార్దమూర్తి గోవింద, జగచ్చక రూప గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. అర్చకులు స్వాములు వారి సంకల్పం చెప్తారు, ప్రతి ఒక్క భక్తులు పాటించండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవానికి గాను పేరు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం. మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలను మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి వినియోగించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం
सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदो गोपति कृष्णो केशवो गरुडध्वजः வராஹோ வாமன சைவ நாராயண ரோக்ஷஜா என்று அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தையும் சேவிப்போம். திருமலை கோவிலில் இருக்கும் சம்பங்கி பிரகாரத்தில் இருக்கும் மண்டபத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். அடுத்தது அந்த திருமாலுடைய பாதாதி கேசமாக அலங்கார பூஷித்தனாக இருக்கும் அந்த மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அடுத்ததாக நாச்சிமார்களையும் சேவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, அதோ சங்கல்பத்தை கேட்டோம். அடுத்தது அந்த விஸ்வக்சேனுவின் ஆராதனை மற்றும் புண்ணியாக வாச்சனம் கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி இப்போது செய்ய உள்ளார். அதையும் தரிசித்து அந்த எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். பூமி பிராட்டியே ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதரித்து பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தி யஸ்ய திருதவக்த்ராத்யாः பார்ஷத்யாः பரிஷதம் விக்னம் நிக்னந்த் சாதம் விஸ்வக்சேனந்தமாஸ்ரீ ஸ்ரோதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிகிலம் மேனசூத்ருதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனதே நமः ஹிருதஸ்மிருதிநிதி பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோலசங்குலம் விஷ்ணுபக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீவனோர்ணவம் பிராணாநாம்யாம் ஓம் பூः ஓம் புவः ஓம் ஸ்வः ஓம் மஹः ஓம் ஜனः ஓம் தபः ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवमा भोज्यतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां सुविदौ श्रेयदेवस्य पदो नारायणस्य श्रीःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसनास्रोत्तन्त्रवशुद्धत्तं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्मरिष्ये ओम धारा सप्तश्रमान शेषु सरस्वरिपूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादेशे घृणामृत्तागं सर्गं चर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मतां दर्शाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्तरस्वी आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो मदवापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो जजविश्वापो यजविश्वापः सत्यमाप सर्वा देवता भोर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सदिथरावायामि एतेषु तम्बरणे सहस्रं विज्ञाः पाशाविदाः पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रसदादिविष्णुरिष्वे देवा मुञ्चन्तु मदस्वस्या वर्णमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणान्मः वरुणस्येदमासनं वरुणान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि यते प्लदोस्त्रात्र्याभरण उपवेत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षदा सर्वोपचाराः सर्वतीर्थ्यालं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकर्मणा निरुघ्येन प्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनिमितं ज्ञाप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्वन्द्यं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयास्माद्दामेत्ताशेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्तेषु तन्निधत्तां वृक्षां दिशोभिधानामनादिः यामे शिष्टान् दिन्दान् दातु ओं भूः पद्माकरण्डले सुक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीसुसक्षेनस्येदमाश्रं विसक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्षेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभाषिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सुविर्वारस्य सक्सेनस्य भोजनं भवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये
ओम वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्त प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाविः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवतौ समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुसि इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुरुतोपविशं यदा वै सूर्यवदति अधनक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत्तदिहन्यं पश्येति तावत् कुरुते यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूवति पुरोष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रवशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्याभाजं पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरीन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिः ददातु ओम भूः अतिपुरोष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डल परिवेशनाश्रोतन्त्रवशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्याभाचर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मभ्ये नमसां सद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा उद्यन्तः शतञ्जीवयं सदस्वीराः ओम भूवतिपुरोष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिवेशनाश्रोतन्त्रवशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्याभाचर्मणि रुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अभुवस्थान ऊर्जिदादन महेरणा चक्षुषे योपस्पदमरुदस्तस्य भाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मा अरङ्गमावो शिक्षयाय जन्मधः आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रियः पावकायाश्जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भन्धविरूपास्तानः पश्यगुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुमनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कदुगं रणु यत्ते पवित्रमर्चुषि अग्ने वीतमन्तरा येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यां गं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सह वा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणस्वमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपति दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यान्ति देवार्त्र्यामाद्यन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पुत्रामाद्यन्तां प्रदीच्यान्ति सिंहः पशुवामाद्यन्ताम् उदीच्यान्ति श्यामोषदेवनस्तुतिमाद्यन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्माद्यन्ताम् अथो दरादरे नागेभ्योमाद्यन्ताम् वास्तोऽष्पदे प्रदयानि हस्वान् स्वावीश्वानमेवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नोऽझस्वस्य नियदद्विपदेशं च दुष्पदे वास्तोऽष्पदे शग्मयासुं सदा ते सक्षिमयि शरण्यागात्मत्याः आवाक्षेमोते योगे वृन्नो यूयं पादस्वस्थभिस्वदानः अमीवः वास्तोऽष्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखासि सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानीतोऽस्यन्तोः तमः कृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमाशमीशम् सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्तार्च समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रयः सर्वे सान्दन्ते सन्धवः सर्वरूपाः पूर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि पूर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भाषा गुणभारनिवेद्यां ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च।
ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்ப சுவாமி திரு கல்யாணத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனையும் சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனமும் மங்களகரமாய் முடிந்தது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம் இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி செய்ய உள்ளார். அந்த ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பரவாசு தேவராக பரமபதநாதனான வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே இந்த கிருத்தயுகத்தில் ஹிரண்ய கசிப்பை சம்ஹரித்து நரசிம்மராகவும், திரேதயுகத்தில் ராவணாதிகளை வதம் செய்த ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியாகவும், துவாபர யுகத்தில் பூவாரத்தை தீர்த்து கீதையை உபதேசித்த கீதாச்சாரியர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் அவதரித்து இதோ இந்த கலியுகத்தில் நம் போன்ற பக்த ஜனங்களை சம்சார கடலிலிருந்து கடையத் தோற்ற அர்ச்ச ரூபியாக திருமலையில் இந்த திருவேங்கடமுடையான் நின்ற கோலத்தில் நமக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கிறார். பக்தர்களே, கோவிந்தா நாம ஸ்மரணம் சகல பாப ஹரணம் என்பதற்கேற்ப கோவிந்தன் நாமவலியை சொல்லிக்கொண்டு இதோ இந்த திரு கல்யாண நிகழ்வுகளை இருந்த இடத்திலே இருந்தே இதோ தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று பாருங்கள். தேரியேன் பாலகண்ணாய் பல தீமைகள் செய்துவிட்டேன், பெரியேன் ஆயின பின் பிறருக்கே உழைத்து ஏழையாவேன், கரிசேல் பூம்பில் சுழ கண மாமலை வேங்கடவா அரியே வந்து அடைந்தேன், அடியேனை ஆட்கொண்டு அருள் என்று திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் இட்டார். இந்த எம்பெருமானை சரணம் அடைந்து நமது சுமைகளை கவலைகளை அவரிடம் ஒப்படைப்போம் வாருங்கள். அந்த எம்பெருமான் அதை நிச்சயமாக தீர்த்து வைப்பார். சரணாகதி தத்துவத்தை எளிய முறையில் நமக்கு விளக்குகிறார் பெரியோர்கள். ஒரு மாட்டு வண்டி, அதற்கு உயிர் இல்லை, ஆனால் அதை இழுக்கும் மாட்டுக்கு உயிர் உண்டு அல்லவா? ஆனாலும் அந்த வண்டிக்காரன் என்ன சொல்லுகிறானோ அதன்படிதான் அந்த உயிர் இல்லாத வண்டியும் உயிரும் அறிவும் உள்ள மாடும் செல்ல வேண்டும். தூரம், நேரம், பாரம் அனைத்தையும் தீர்மானிப்பவன் யார்? அந்த வண்டிக்காரன் தானே. அதனால் அந்த சுமப்பது தானாக இருந்தாலும் மாடுகளால் தனியாக செயல்பட முடியாது. அதே போல் देवता पूजान प्रकरिष्ये ओम षण्णोन सत्तांतम सौर्जत्तां स्वयं भरग्रेम तेम ताया नागराजमावाहयामि सहर्षेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ओम स्वस्ति नोः मिवेदामश्वनाभः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषामुसरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं पभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवा मन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नोः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नोः ऐते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दाक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नामवारुहेम अम्हों च माङ्गिरसञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அந்த கோவிந்தனுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்து அந்த ரக்ஷையை பூஜையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்னும் கயிற்றுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்துள்ளார். அதன் பின்பு அந்த ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்து ரக்ஷா பந்தனம் கைங்கரியத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பவிஷ்யோத்திர புராணம் திருப்பதிக்கு யுகக்கிரமாக ரிஷபாச்சலம்
அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம், வெங்கடாச்சலம் என்று 4 பெயர்கள் வந்தன என்று சொல்லுகிறார். வராக புராணம் இன்னும் 14 பெயர்களை சொல்லுகிறது. அவைகளை தெரிந்து கொண்டு அதன் புண்ணியத்தையும் பெறுவோம். இஷ்டப்பட்டதை எல்லாம் கொடுப்பதால் அந்த பருவத்திற்கு சிந்தாமணி என்று பெயர். ஞானத்தை கொடுப்பதால் அது ஞானாச்சலம். எல்லா தீர்த்தங்களின் சன்னிதானத்தை கொண்டு இருப்பதால் அது தீர்த்தாச்சலம். எல்லா சரோவரங்களிலும் சிரேஷ்டமான சரோவரம் அங்கு இருப்பதால் அது புஷ்கராத்திரி. யமன் இங்கு வந்து தபஸ் செய்து பகவானின் அனுகிரகத்தை பெற்றதால் இது விருக்ஷாச்சலம். விருக்ஷ என்று தங்கமயமான மேருமலையின் மகன் ஆதலால் இது கனகாச்சலம். நாராயணன் என்ற பண்டிதன் இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நாராயணத்ரி. கருடன் இதை வைகுண்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்ததால் இது வைகுண்டாச்சலம். நரசிம்மன் இங்கு அவதரித்ததால் இது சிம்ஹாச்சலம். வராக தேவரின் சன்னிதானம் இங்கு இருப்பதால் இது வராகச்சலம். ராமாயணத்தில் வரும் நீலன் என்ற கவி இங்கு வந்து தவம் செய்ததால் இது நீலகிரி. பகவத் பக்தர்கள் இங்கு பகவானுடன் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதால் இது ஆனந்தகிரி. மகாலட்சுமியின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீசைலம். ஸ்ரீனிவாசனின் சன்னிதானம் இருப்பதால் இது ஸ்ரீனிவாசகிரி. இப்படி அநேக பெயர்களை வராக புராணம் சொல்லுகிறது. இந்த பக்தர்களை இந்த வெங்கடேஸ்வர சுப்பிரபாதத்தில் ஸ்ரீ சேஷ, சைல, கருடாச்சல, வெங்கடாத்ரி, நாராயணத்ரி, விஷபாத்ரி, விஷாத்ரி, முக்கியாம் என 7 மலைகள் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஆனால் நாம் கண்டதை போல் திருமலைக்கு அநேக நாமங்கள் உண்டு. எவ்வளவு புண்ணியம்! இதை நாம் தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் அந்த எம்பெருமானின் அருளையும் பெறுவோம். எப்பொழுதும் பகவத் தியானத்திலேயே இருந்து கொண்டு அதனாலேயே சதா சர்வ காலமும் ஆனந்தப்படும் சதனாந்த ரிஷி திருப்பதிக்கு முந்தின யுகங்களில் ரிஷபாச்சலம், அஞ்சனாச்சலம், சேஷாச்சலம் என்ற பெயர்கள் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை ஜனக மகாராஜாவுக்கு சொன்னதன் மூலம் உலகினருக்கே தெரிவித்தாராம். வரதோ வாயு வாகனா என்கிறது விஷ்ணு சகசர நாமம். காஞ்சியில் இருப்பவனும் வரதனே, திருப்பதியில் இருப்பவனும் வரதனே. பகவான் நமக்கு வரதனாக இருப்பதால் அவன் வரதன். திருப்பதியில் வரத முத்திரையுடன் இருக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் நமக்கெல்லாம் வரதன். வரதனுக்கு அந்த வாயு வாகனமாக இருக்கிறார். அதனால்தான் வரதன் வாயு வாகனன். தான் இங்கு வருவதற்கு முன்பே தன் வாகனத்தை இங்கு அனுப்பி சித்தப்படுத்துகிறார் நம் ஸ்ரீனிவாசர். பிரபலமானவர் பயணிப்பதற்கு முன்பே வாகனம் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? அதை போல திரேதாயுகத்தில் அஞ்சனையின் மூலம் வாயுவை ஜனிக்கச் செய்தார். துவாபர யுகத்தில் சேஷ கர்வபங்கம் மூலம் வாயு ஜீவோத்மாவத்தை உலகினிற்கே காண்பித்தாராம். இது மட்டுமல்ல, ஜன்மங்களில் செய்த சாதனைகளால் சித்தி பெற்று அந்த பகவானின் பிரதான சேவகனாக பணிபுரியும் தகுதியை வாயுதேவர் பெற்று இருந்தாலும் அந்த பாக்கியத்தை பகவானிடம் இருந்தே நேரில் ஆசீர்வாத ரூபமாக பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் தவம் செய்த அவருக்கு தன் அவதாரங்களில் பிரதான பொறுப்பை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, தன்னுடன் அந்த மலையில் இருக்கவும் அருளிய அந்த பகவானுக்கு வாயு தேவரின் மேல் எவ்வளவு அக்கறை இருக்கிறது என்பது புரிகிறது அல்லவா? சமஸ்கிருதத்தில் வேம் என்றால் பாவங்களின் கும்பல் என்று அர்த்தமாம். பாவ ராசிகள் நரகத்திற்கு இருப்பதால் அவை வேம். அவைகளை துண்டிக்கும் சமஸ்கிருதத்தின் கட் ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீ ஆகியிருக்கிறது. ஸ்ரீ பர்வத்தம் வெங்கடம். அசலம் என்றால் மலை. அதனால் இந்த மலைக்கு பேர் என்ன? வெங்கடாச்சலம். இதற்கு அதிபதியாக இருப்பவர் யார்? அந்த பகவான் வெங்கடேசன்.
நமது பாவங்களை எல்லாம் தகித்து நம்மை சுத்தனாக்கி நம்மை சன்மார்க்கத்தில் உயிரையிட்டு செல்வதால் இந்த பருவத்திற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் வந்தது என்று பவிஷ்யோத்தர புராணத்தில் வியாக்கியானம் வருகிறது. பகவான் ஸ்ரீ வேதவியாசர் இன்னொரு வகை வியாக்கியானத்தை வராக வாமன புராணங்களில் சொல்லி இருக்கிறார். வேம் என்றால் அமிர்தம், மோக்ஷமாம். அமிர்தத்தை அதாவது அந்த மோட்சத்தை குறிக்கும் பீஜாட்சரம் வேம் என்பது. கடை என்றால் ஐஸ்வர்யம். இவ்விரண்டையும் இந்த பர்வத்தம் கொடுப்பதால் இதற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் வந்தது என்பதாக இந்த வியாக்கியானம் இருக்கிறது. ஒரு புராணத்தில் பாவங்களை போக்குவதால் வெங்கடாச்சலம் என்றும், இன்னொரு புராணத்தில் மோட்சம் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களை கொடுப்பதால் வெங்கடாச்சலம் என்றும் இரண்டு ரீதியில் சொல்லப்படுகிறது. எது சரி என்று நினைக்க தோன்றுகிறது அல்லவா பக்தர்களே? இரண்டுக்கும் மிக நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. மோட்சத்திற்கு ஞானமே சாதனம். கர்மத்தை மாத்திரம் செய்து மோட்சத்தை பெறலாம் என்பது ஒரு காலும் நடக்காது. ஞானம் ஒன்றே மோட்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை நாண்ய பந்தத்தா அயனாய வித்யதே என்று புருஷ சுக்தம் நிர்ணயிக்கிறது. ஞானத்திற்கு பிரதிபந்தமானது பாவம். பாவங்கள் போனால் ஞானம் பிறக்கும். நம்மில் பலருக்கு சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு ஆர்வமாகவோ அவகாசமோ இருப்பதில்லை. இருப்பவர்கள் படித்தாலும் விஷயங்களை கிரகிக்க முடிவதில்லை. கிரகத்திலும் அவைகள் நினைவில் இருப்பதில்லை. இவைகளுக்கே பாவங்களே காரணம். பாவங்கள் அகன்றால் ஞானம் கிடைக்கும். மோட்சத்திற்கு ஞானம் ஒன்றே வழியானால் அந்த ஞானம் வர பாவங்கள் போக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருக்கிறது. அதோ பக்தர்களே, அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பந்தனத்தை இனிதே மங்களகரமாய் முடித்து அடுத்த கைங்கரியத்துக்கு செல்ல தயாராகிவிட்டார். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் கர்ம ரிஷே ஓம் யத்வன்மிந்திரம் சவாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தேருக்தேர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் மோக்து மை தேவா திரிவிணமாஜந்தாமை தேவோதி தேவ்யா ஹோதா ராவண பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம தர்மா சுவீராஹ மக்ஷே ஜந்தவ்யான் ஹவ்யாகோ சத்யாமன சௌமியஸ்து ஏ நாமானிகாஹம் கதமர்ச்சனாஹம் விஸ்வே தேவாசோ அதிவோர்ஜாமே உத்வன்யமான மச்சாமேத்யாம் பாப்மானம் யஜமானஸ்யந்து சிவானஸ்சந்த பிரதேஷ்யஸ்ய சன்னா மாதா பృథివీ தோகதாதா ஹோதஹதரேன சௌம்யாः குணத்வம் ரிஷ்ணா ஹோதவிம்சதே அஷ்டாபந்தகம் ரிஷனாவிதஹரம்யேன தேவாசோஜன்ய விஷ்க்ரியாः ஜாதவேத புவனஸ்ரேதே ஹிஞ்சதமசோஜ்ய நிஷதேः அக்னிமஸ்வத்தாதவ்யவாகும் उपावरोह जातवेदः पुनस्तन देवेभ्यो हव्यं वनः प्रजानन् आयुः प्रजागमरेमस्माभिः स्रदीति अनोद्रोणे तत्सैतेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसो तप्सुवा तत्सुद्रवरेहिण्यं भर्गो देवस्तिमे धियो न प्रचोदयाति ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादसिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चानुमतश्चिवः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजातिमावाहयामि ओं स्व पितामहमावाहयामि भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणेन मायदमासनं सोमोधेनुगं सोमवारं तमासं सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यमित्थिकं सभेयं पितृश्रावणमेदा तस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ अग्निये स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तष्पाणिन्द्रोणसूर्ययूर्मणिन्द्रोणसूर्यवेन महाविष्णोस्तु पोषि दक्षिणतो विष्णोस्तु पोषि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं वीक्षा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं वीक्षा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सगं साधयन्तनः दक्ष प्रणेतो ब्रह्म प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि
सोमावाह्यामि अग्निशोमावाह्यामि पर्याजमावाह्यं ब्रह्माणमावाह्यं इन्द्रमावाह्यं वसोनावाह्यं मरुतमावाह्यं रुद्राणावाह्यामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाह्यं बृहस्पतिमावाह्यं मित्रमावाह्यं वरुणमावाह्यं आदित्यानावाह्यामि अश्विनामावाह्यं भूषणमावाह्यं कक्षमावाह्यं कक्षसोमावाह्यामि औपासने यज्ञमावाह्यामि यज्ञे विश्वान् देवानावाह्यामि सर्वदेवानावाह्यामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनपाम् इन्द्राष्टनपाम् अग्नेष्टनपाम् सोमाष्टनपामि अग्नेष्टनपाम् सोमाष्टनपाग्नि समाहाभ्यानुष्टनपाम् प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपाम् वसुभ्यष्टनपाम् मरुद्भ्यष्टनपाम् रुद्रेभ्यष्टनपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णुवेष्टनपाम् मित्राष्टनपाम् वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपाम् शुद्धाष्टनपाम् पूष्णेष्टनपाम् कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रियामि शरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषी समिति स्वाहा अमृतवसुवारणसी अन्तर्दमक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाप्ना त्वचिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वचिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तास्वदाप्ना त्वचिद्रेण पवित्रेण सोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्गतस्वती स्वाहा अक्षतार्च चरिविरिमामे अग्निष्टगाधेन सन्त्वेकाच ततंत्र सहस्रं चारितं च नीतं च प्रेतं च अद्भुतं च निर्भुतं समुद्राच्च तंत्रो इंद्राय नमः अग्नेय नमः यमाय नमः नीत्यै नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः अवरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अयतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदेवतपस्वा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भमाणया अन्द्यत्मात्माजाद्वेदस्तेनेद्धसौधेर् आत्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेर्या अस्मिन्नोपास्नानीन्द्र ब्रह्मणसमुद्धम् आदास्ये आदस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिये स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा असिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिचार्यातं सावित्र्याग्रत्वावितिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा एतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितप्रासावीः ओम भूतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तरिपर्यातरणात् प्रायस्तात् ततो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रासा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगवादाभ्यात् धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो प्रधानस्य इन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिव्यचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रास वन्यमोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितप्रासावीः वेलयुनी कल्याण
నతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి జౌనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిండగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిండగా మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనెరిగి వేలిచెను అతివని కదడు మదిరాక్షి నీ మంచి శృతిస్మృతిరదే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాక్ష సప్తావరణీయరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల దల మహాదల సాదల దళాతల సప్తపాదాలాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ షండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియవనిర్దివరణవాయుకుబేరీషాణాఖ్యాష్టలోకవాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరాసర్పితధిక్షీరశుద్ధోరకాక్ష సప్తాన్నమ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రం చ శాకశాన్మళి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమణే సహ్యదృక్తమద్రిక్తమద్వింద్యవర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ రావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్ష్యార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకావసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः उत्तीर्य सूर्यमंडलपर्यन्तं कुदराशेर्वर्षास्त्रावसाने एकैकजलापकृष्णक्रमेण सर्वराश्वकरसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टामतिरात्ताप्तोर्यामशान्तवनवादिवेयपौण्डरीकाश्वमेधारी शतक्कलपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरूपैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्ठादिग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदारि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य
परव्यूहो अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान् और्ववैदुल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवसुगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मकां भुगो संकल्पदनीयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्ववेदास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्र त्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पदयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णुवेतुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य तालङ्गुलां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा षड्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु திருமலை வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் அந்த அக்னி பிரதிஷ்டம், மதுபார்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம் ஆகியவற்றை நாம் சேவித்தோம். தாயார்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கன்யாதனம் செய்கின்ற காட்சியும் மங்களகரமாய் முடிகிறது. அடுத்த நிகழ்வு அந்த திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக நம் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திருமாங்கல்யத்தை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் ஷோடச உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த ஆகாஷராஜன் சுதாச்சாரியரை வரவழைக்க தொண்டமான் மூலம் செய்தி அனுப்பினான். பகவானின் திருமணச் செய்தியை கேட்டதும் அந்த சுகாச்சாரியர் ஆனந்த கூத்தாடினார். ஜகத்தில் உள்ள தம்பதிகள் அனைவருக்கும் தாம்பத்திய சுதத்தை வழங்குபவர்கள் சிவன் உமா தம்பதிகள். சிவன் மனதுக்கும் உமா வாக்குக்கும் அபிமானி தேவதைகள். மனதுக்கும் வாக்குக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. மனதின் சிந்தனை வாக்காக வெளிவருகிறது. அர்த்தம் புத்வா சப்த ரசனா. மனதுக்கும் வாக்குக்கும் இருக்கும் இந்த நெருங்கிய சம்பந்தத்தை போலவே சிவனுக்கும் உமாவுக்கும் அந்யோனத்தை சிந்தனை செய்யும் தம்பதிகள் தாம்பத்திய ஜீவனம் உன்னத ரீதியில் இருக்கும் என்று, தாம்பத்தியத்தில் சோதனை வந்தாலும் அது நிவர்த்தியாகும் என்றும் ஸ்ரீ மதாச்சாரியர் பாஷ்யத்தில் சொல்லுகிறது. இந்த தம்பதிய சுகத்தை ஜகத்திலுள்ள அனைவருக்கும் பகவானின் அனுகிரகத்தாலும் பகவான் தனக்கு இட்ட அக்னையாலும் வழங்குபவர் ருத்ரன். அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு திருமணம் என்று கேள்விப்பட்டதும் ருத்ரவதாரமான சுகாச்சாரியருக்கு
தலைகால் புரியாத சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. மகிழ்ச்சியின் உச்சியை தொட்ட அவர் தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து கமண்டலுவை கீழே போட்டு உடைத்து அணிந்திருந்த மாலையை கழற்றி எறிந்து ஆனந்த கூத்தாடினாராம். இந்த செய்கையினால் என்ன பிரயோஜனம், இவர்களுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அம்மாதிரி ஒன்றும் இல்லை என்கிறது அந்த சாஸ்திரம். எல்லை கடந்த ஆனந்தமாகிலும் சரி, துக்கமாகிலும் சரி, மனிதனின் உணர்ச்சிகளை பொங்கி எழச் செய்கிறது. அப்பொழுது என்ன செய்கிறோம் என்ற உணர்வில்லாமல் மனிதை எதையோ செய்கிறான். சுகாச்சாரியர் மனோபிமானியான ருத்ரனின் அவதாரம், வைராகிய சீலர். அப்பேற்பட்டவரையும் கூட ரமா ரமேசர்களின் திருமணச் செய்தி மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கடித்து திரை வைத்ததாம். இந்திரிய நிகிரகம் செய்த முனிவர்களையும் தன்னிடம் இழுக்கும் ஆக்ரஷண சக்தி பகவானின் குணங்களுக்கு இருக்கிறது என்று அந்த பாகவதம் கூறுகிறது. சுகாச்சாரியார் வஸ்திரங்களை கிழித்து கமண்டலவை வீசி எரிந்ததற்கு இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கக்கூடுமோ என்று தோன்றுகிறது. கர்மங்கள் செய்வதன் உத்தேசம் செய்த தரிசனத்திற்கு பகவானின் சாஸ்திரத்திற்கு அது கெடுத்துவிட்டால் செய்த கர்மங்களின் முழு பயனை அடைவிட்ட மாதிரிதான். பகவானை அடைய செய்ய வேண்டிய கர்மங்களை எல்லாம் செய்து இலக்கையும் அடைந்து விட்டால் இனி அதற்காக செய்ய வேண்டிய கர்மம் ஒன்றுமில்லை. கர்மம் செய்த தேவைப்படும் உபகரணங்களுக்கு இனி தேவையில்லை. இப்படி நினைத்து அவர் அவைகளை வீசி எறிந்தார். அப்ரோக்ஷ ஞானம் வந்த பிறகு கர்மம் தேவையில்லை என்று நினைப்பது தவறு தவறு தவறு. ஞானம் வந்த பிறகு கூட கர்மம் அவசியம். ஏனெனில் அது மோட்சத்தில் ஆனந்த அபிவிருத்தியை கொடுக்கிறதாம். இது ஞாபகம் வந்ததும் வேறு கமண்டலும் முதலியவைகளை சுகாச்சாரியார் எடுத்து கொண்டாராம். தன் அழைப்பை ஏற்று வந்த சுகாச்சாரியரிடம் ஆகாஷராஜன் கேட்டான், கோத்திரம் ஒத்து வருகிறதா, நட்சத்திரங்கள் பொருந்துகின்றனவா? அதற்கு சுகாச்சாரியார், எல்லாமே மிக சரியாகவே இருக்கின்றன, தாமதமில்லாமல் மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டியவர்களை செய் என்றார். பகவானுக்கு குலமேத்து கோத்திரம் எது? கோத்திரமே இல்லாத பகவானுக்கு கோத்திர பொருத்தத்தை எப்படி பார்ப்பது என்றார். ஒரு நிமிடத்திற்கு தான் தேவகி வசுதேவர்கள் தாய் தந்தையர். கிருஷ்ணன் ஆவிர்பவித்த வேளையில் எந்த நட்சத்திரம் இருந்ததோ அதை சொல்லாம்தான். ஆனால் சகல கிரகங்களும் யாருடைய கடைக்கண் பார்வையில் பிறந்த அக்னியில் வலம் வருகின்றனவோ சகல கிரகங்களின் பலனையும் எவர் ஒருவரோ தருகின்றாரோ அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு நட்சத்திரம் ஏது, ராசி ஏது, ஜாதகம் ஏது? எந்த கிரகம், எந்த நட்சத்திரம், எந்த ராசி அவரை தடை செய்ய முடியும்? அவரை சகல கிரக பல நீனு சரசிஜாக்ஷ என்றல்லவா கொண்டாடுகிறோம். சுகாச்சாரியார் ப்ருஹஸ்பத்யாச்சரை இவர்களின் அனுமதியை பெற்று ஆகாஷராஜன் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான். அற்புதமான அந்த கடிதத்தில், நீ சர்வ ஸ்வதந்திரன், சர்வ வல்லமை உள்ளவன், இணையில்லாதவன், சகல வேத பிரதிபாத்தியன், பிரம்மருத்தி தேவர்களால் துதிக்கப்படுபவன், ஆனந்த ரூபம் கொண்டவன் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கிறான். தன் மகள் பத்மாவதியை திருமணம் செய்து கொடுப்பதாகவும் சொல்லுகிறான். பகவான் ஸ்ரீனிவாசனின் சர்வோத்தமத்தை பல்வேறு போற்றி மனதில் நமஸ்கரித்துவிட்டு வெளிப்படையாக கடிதத்தில் லோக நியமத்தை அனுசரித்து மாப்பிள்ளையே ஆசிர்வதிப்பதாக எழுதினார். எழுதிய கடிதத்தை சுகாச்சாரியரிடம் கொடுத்து அவை ஸ்ரீனிவாசனிடம் சேர்க்கும்படி சொன்னாராம். சுகாச்சாரியார் கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீனிவாசனிடம் சென்றார். அவர் வருவதை பார்த்ததும் பகவான் கேட்டார், பக்கம் வா, அப்பக்கமே வா, காயா பழமா என்று. நீ நினைத்தது என்று காயா இருக்கிறது, பரிபக்குவம்தான் என்று சுகாச்சாரியார் சொல்லி ஆகாஷராஜனின் கடிதத்தை பகவானிடம் கொடுத்தார். பகவான் அந்த கடிதத்தை பக்தியுடன் வாங்கி தன் தலையில் வைத்து கொண்டார். தந்தை, குரு, மாமன் இவர்களுக்கெல்லாம் மதிக்கப்பட்ட வேண்டியவர்கள் இவர்களிடம் இருந்து வரும் செய்திக்கு மதிப்பு கொடுத்து கௌரவிக்க வேண்டும். இம்மாதிரியான சம்பவங்கள் மகாபாரதத்திலும் ராமாயணத்திலும் வருகின்றன. ஸ்ரீ மடத்திலிருந்து சென்ற கடிதங்களும் இம்மாதிரியான கௌரவம் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றாராம். பூஜ்ய ஸ்ரீ சத்யாபிநவ தீர்த்தர்
பண்டரிபுர பிரயாணத்தில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது டில்லி சர்க்காரின் பிரதிநிதியாக முக்கிய பதவி வகித்த நரோபாஸ்கர என்பவருக்கு தன்னை வந்து பார்க்குமாறு ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பினார். அந்த கடிதத்தை மரியாதையுடன் பெற்றுக்கொண்டு அவர் ராஜ தர்பாரில் தங்க சிம்ஹாசனத்தில் அதை வைத்து பூஜை செய்த பிறகு பிரித்து படித்தாராம். குருகளிடம் இருந்து வரும் கடிதத்தை பெற்று கொள்ளும் போதே தங்களுடைய பூஜ்ய பாவனையும் வினயத்தையும் காட்டிக்கொள்வதுதான் வழக்கம். ஆகாஷராஜனின் கடிதத்தை பிரித்து படித்த ஸ்ரீனிவாசன் மிக்க மகிழ்ச்சி கொண்டான். கடிதத்தை கொண்டு வந்த சுகாச்சாரியரை தழுவி ஆலிங்கனம் செய்தான். இந்த சமயத்தில் ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியாருக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. அவர் பகவானை வேதவியாசரை பத்ரியில் சந்தித்த போது ஸ்ரீ வேதவியாசர் ஸ்ரீ மத்வரை மிகுந்த வாச்சால்யத்துடன் ஆறக்கட்டி தழுவினார். இந்த மாதிரியான ஆலிங்கன மகன் சுகாச்சாரியருக்கு கூட தந்தை வேதவியாசரிடமிருந்து கிடைக்கவில்லை என்று சுமேத்வ விஜயத்தில் ஸ்ரீ நாராயண பண்டிதரார் குறிப்பிட்டுகிறார். அதே பகவான் சுகாச்சாரியரை கட்டி தழுவி கொண்டிருக்கிறாரே, ஸ்ரீ நாராயண பண்டிதாராச்சாரியார் சொன்னது தவறா அல்லது பகவானுக்கு சுகாச்சாரியரிடம் பிரியம் இல்லையா என்ற கேள்வி எழலாம். பிரம்ம வாயுக்களுக்கு பிறகு சரஸ்வதி, பாரதியாருக்கு பிறகு தன் வகிக்கும் ஸ்தானம், அகங்காரத்துவ தத்துவத்தின் ஆதிபத்தியம், மனோபிமான தேவத்துவம், ஜகத்தின் சம்ஹார பொறுப்பு, இவைகளுக்கெல்லாம் பகவானின் பிரீத்தியே சம்பாதித்து கொண்டு பிறக்கல்லவா என்று அந்த ருத்ரனுக்கு கெடுத்திருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட பகவானின் ஆலிங்கனத்தில் பிரியம் இல்லாமல் இருக்குமோ என்று கேட்டாராம். ஆனால் ஆலிங்கத்தினிலும் தாரதமியம் இருக்கிறது. சொந்த பந்தங்களை கட்டி தழுவும் ஆலிங்கனம் வேறு, வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகளின் போது சம்பிரதாயத்திற்கு செய்யும் श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियम्बजोचरदृभ्यो ददाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्तमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरी स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
मांगम प्रधान होमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा तप्रसवा अग्नेद प्रथमो देवता नागम सहस्य प्रजां चतुर्थभाषात् तदेकं राजावरुणो न मन्यतामधे गोस्त्रीवत्रोहनरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्राताङ्गारपत्य प्रजां चतुर्थभाषात् तदेकं राजावरुणो न मन्यतामधे गोस्त्रीवत्रोहनरोधात् स्वाहा इमं मे वरस्वदीयमद्वाचमडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानसाशाः तेजमानो विर्भिः अहेडमानवर्णयः बोधृशं समान आयु प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्येडोभयाश्रेष्ठाः यजुष्ठो वर्णितमस्सो जानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुत्य स्वाहा तन्नोऽग्ने मो भवति नेदिस्यास्यावसव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णुम्राणविहिमृडिगं सुहोनेदि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमुषे यानो धेहि वे जग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देशविदः प्रासावीः ओं भूतिविरोक्तमिष्टायां स्वं श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देशविदः प्रसवा इवां लाजत्व आज्योभिगार्य इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम मन्यतां यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्दी दीर्घायुरस्वरे पतिरेदन्तां ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिदेनागम्भेणोत्तर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामुदागम् अनु विश्वावदत्त्वयाब्जं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्दी दीर्घायुरस्वरे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिदेनागम्भेणोत्तर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामुदागम् अनु विश्वावदत्त्वया धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानवबन्दी दीर्घायुरस्वरे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिदेनागम्भेणोत्तर्जन्यश्च पुष्पेण दत्तामुदागम् अनु विश्वावदत्त्वया धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देशविदः प्रासावीः ओं भूतिविरोक्तमिष्टायां स्वं श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रे पर्यादन्नात् प्रास्तात् अतो दिवादिवैष्णवं भोष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देशविदः प्रसवा ओं मतो देवावन्द्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सद्दां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवं समूढमस्वाहं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रेतो अवधानविश्रे इन्द्रस्येज्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजाध्रुवागं दस्मिन्ते विष्णोरित्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देशविदः प्रासावीः ओं भूतिविरोक्तमिष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलितपृष्ठा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवशतप्रसवा यदि सयमनोतीर्धमिद्यानेन महाक्रम अग्निसृष्टितार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते सुतः दावतेनां कामानाग समुद्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रेवादिष्टं सर्वत्रेवाणादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मना मेधाबोधज्ञस्तनराः जातवे जावति स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समृद्ध्यैः स्वाहा सर्वसमृद्ध्यैः स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुतमतिनोक्तं च अग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यक्षेणमग्नपर्वान् प्रणेतकल्पेन स्वाहा स्वाहा समिधस्य तेजोस् तेजोमेधैः स्वाहा यमस्य धीमे प्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा
वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तवा सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तान्पायन्ति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवोर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं ओषध वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तग स्वाहा अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवोर्जीर्णं पृथिवीर्जीर्णं ओषध वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ जीर्णग स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समात्य समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिः देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समितः सप्तैक्वा सप्तर्षि सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वाजन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागुदेन स्वाहा सुदान विद्वानुष्टब्देन पूर्णमादिञ्ज मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोषधवनस्पन्दादित्रिप्यन्तां यदक्षपदामः पितामह साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् एतेन मग्रस्ताः अणुतेन मग्रस्ताः सरस्तेन मग्रस्तादिप्रासाभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् तेजोमि अक्षमा मे चेष्टाः प्राच्यान् देवार्चमाद्यन्तां दक्षिणता विष्णोः सनमसि पश्चिमता विष्णोः सनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् समोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मृतां वृषधेश्च दिवं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतिं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभवस्थानवोच्येदादन महेरणा चक्षुरे योपस्तुतमार्दस्तस्य भाजे तेन उषतीर्यो मात्रः तस्माहरङ्गमावो शिक्ष्या जन्मधः आपो जनेधाजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूया सम्यस्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूया सम्यस्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ति भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जो चतुर्दिन्दृषे योदगान्मतोर्नवाः दुर्भ्राजमानस्तरसमुद्यात् समाभ्रमो रोहिताक्षसूर्यो बृहन्मनसा बनातु ओं च मे सदश्च मे यज्ञपते नमश्च यत्तेः ननं तस्मै तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सते नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रै नम्बा उदत्तारपाग्ने जातवे से भगवान् पज्जर्त वो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना विकुदन्तदेवान् तत्पूर्णन्दात्मे प्रायश्चित्तान् निशेनान् होमकर्मात्मान् वै यान् तेषां निशेनां श्रीकृष्णान् स्मरं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा अध्यात्मना वा प्रदेशभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि सर्वं श्री भूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु।
வெங்கடேஷாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோமம் காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாகுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெஞ்சங்கை என்று அந்த எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டார் நம் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது நம் சங்க ஆழ்வார்க்கு தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே இந்த வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரம். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாகும். ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் சேவிப்போம். இதை தொடர்ந்தாற்போல் மாறா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வதே சம்பிரதாயம்தானே. இப்போது அந்த புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களில் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மன மாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்தது நம் ரமாதேவி அல்லவா. பொறுமையின் பூஷணம் அவள் சூடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து அந்த மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. அடுத்தது தாயார் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீ பூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர் சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்று உள்ளோம். அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதை அடுத்து அர்ச்சகர் சுவாமி பரிவட்ட மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது முடிந்ததும் தலம்பராலு என்ற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. மங்கள அக்ஷத்தையும் பெருமானின் திருவடிகளின் தாயார்களின் சிரசிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி சேர்க்க உள்ளார். அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள ஹார்த்தியுடன் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ